आपको लगता है कि जीडी सिर्फ एक एलिमिनेशन राउंड है, तो सॉरी टू से डियर, यू आर ऑलरेडी बीइंग एलिमिनेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। जीडी सिर्फ बोलने का नहीं, सही टाइम पे सही चीज बोलने का गेम है। हाय, दिस इज मी किरण रोहिरा, योर वेरी ओन पीडी ट्रेनर, एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल दैट इज द कॉन्फिडेंट ग्रैड। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी वो प्लेसमेंट प्रेप दैट विल हेल्प यू एक्चुअली फॉर नॉट गेटिंग ब्लैंक आउट बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड जीडी फियर। एंड ऑल्सो आज के सारे ज्ञान को आप डायरेक्टली कॉलेज के जाके मॉक जीडीज या क्लास ग्रुप्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी रियली फोकस्ड विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज नोट दैट दिस इज not just the another video which is coming up on this topic. Here I have tried to cover everything that you need to know or you might even think of before stepping into a GD room. So whether it is how to start confidently, do's and don'ts that cause selection, winning body language, phrases which can be used in different situations, and also what to do if you are completely unaware of the GD topic. So you will be getting all this in one complete masterclass, practical masterclass I would say, ताकि आपका टाइम बचे and you need not to watch 10 different videos for each single topic. So you have to be with me till the end of this video. So before we dive into the video, don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you are notified whenever the next beneficial videos comes up for you. And also for you to easily understand, मैंने इस पूरे वीडियो को easy parts में divide किया है. So let's walk through the roadmap of what all we will be covering today. So here is the agenda. First, we'll be discussing about what is GDs and why companies conduct it. Second, roles that you play in a GD. Third, GD structure with an example topic. Fourth, do's and don'ts of body language that can be used in a GD. Fifth, the phrases which you can use in a GD to sound professional. Sixth, what to do if you don't know the topic. And last, common mistake to avoid. So let's start with our first topic, that is what is GD and why companies conduct it. So GD एक ऐसा process है, एक ऐसी setting है which is like a group discussion setting, जहाँ पे आपको एक topic दिया जाता है and आपको उस topic पे बैठकर सबको discuss करना होता है, अपने अपने point of views रखने होते हैं. But now we need to know that why companies conduct it. हम companies ये करवाती क्यों हैं? Because they want to judge your social intelligence and also your leadership potential and how you will be behaving in high-stake professional settings like this. फॉर एग्जाम्पल, कभी कंपनी की अगर आगे चल के कोई प्रोडक्ट लॉन्च मीटिंग है या फिर कोई डिसीजन मेकिंग मीटिंग है या कोई इंपॉर्टेंट टीम रिव्यूज़ डिस्कशन है, तो वहाँ पे आप कैसा बिहेव करते हैं, क्या आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों के साथ आप कितना क्लियर है और कॉन्फिडेंट है, ये सब जज करने के लिए GDs कंडक्ट होती है. Now coming to the next part, that is what roles can you play in a GD. So there are various roles which you can play in a GD. First is initiator, जो topic start करता है and वो भी clearly and confidently and it sets the tone for the entire group to continue. Second is clarifier, जो points clear करता है, summarize करता है for the group to understand. Then comes supporter, जो सबके valid points को support करता है. And one role could be opponent, जो constructively disagree करता है बाकी के points of view से. एंड द अदर कुड बी द बैलेंसर, जो सबके पॉइंट्स को बैलेंस करके चलता है ताकि ग्रुप में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो. एंड द लास्ट वन इज कंक्लूडर, जो सारे पॉइंट्स को समराइज करता है एट द एंड एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखते हुए सबका एक कंसेंसस लेके कंक्लूड करता है सारे डिस्कशन को. सो दीज आर जस्ट रोल. इसको डिटेल में समझने के लिए हमें जीडी के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना होगा. सो स्ट्रक्चर ऑफ द जीडी इन्वॉल्व्स दीज 4 phases. फर्स्ट इज इनिशिएशन फेज. Second comes your building phase. Third is an engagement phase. And fourth comes the conclusion phase. Starting with the initiation phase, that is opening of the GD. Here, if you are initiating the discussion, you need to be very confident about the topic. I would highly recommend that don't initiate or start the discussion if you're not aware of the topic. Because if you will show your over smartness over here, you will be getting a negative point or you'll lose your marks directly. So if you are starting, 2 things which you need to keep in mind is that you need to be unbiased, don't take extreme sides for any topic, and also start with definition of that topic so that anyone in the group who is not aware of the topic can understand the topic better. And then what you are actually doing is that you are setting the tone and giving a direction to the group to start discussing on it. So the role of initiator is very important. I have also mentioned one example over here on my screen so that
you can better understand how you can initiate the discussion. Now second comes the building points or the body of the GD. Here you will be sharing your own example, your own opinions, whatever is being said by the initiators. Now you'll be adding points to it. Here you need to be very careful that you're logical, you're respectful, and also you are supporting others' point. If you will be giving the example which is data driven, it will bring more authenticity to your knowledge. It will actually impress the interviewer that you are not sitting here like you are just not just listening and saying the same points again and again, but you actually have the knowledge of that topic. For this also I have used the same example to explain you better, so kindly refer to my screen. The third phase could be the conflict or the peak discussion point. Here the energy of every member would be really high, and a little disagreement may arise over here. A conflict situation kind of can be there, but here you need to stay calm, again respectful, and you need to handle the disagreement very calmly and respectfully. So how you can do it? Please refer to these examples which I have quoted over here. And students, please be careful. This is the point where students forget their points by interrupting or contributing into the heated discussion. So you need not to do that. Stay focused, stay calm, and stay cool over there. Now comes the last part, that is conclusion. ये बहुत ही important है because अगर आपने अभी तक ग्रुप में कुछ भी नहीं बोला है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. कई बार तो इंटरव्यूअर वेट करता है कि आप में से कोई खुद से ही आगे बढ़ के कंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट करे पोलाइटली, या फिर कई बार तो अगर आपको इंटरव्यूअर कोई चांस देना चाहता है, अगर आपने कुछ नहीं बोला एंड स्टिल ही वांट्स टू गिव यू अ चांस, तो वो आपसे बोलता है कि आई वांट यू टू समराइज और कंक्लूड द डिस्कशन. इन एनी केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखें, बिकॉज आपके बोलने का टाइम ख़त्म हो चुका है, डिस्कशन अब ख़त्म हो चुका है. अब आपको जो भी ग्रुप ने डिस्कस किया वो सारे पॉइंट्स को समराइज़ करके बोलना है, की टर्म्स की पॉइंट्स को आपको यहाँ पे रखना है. और एंड जो पूरे ग्रुप का एक कंसेंसस होगा, जैसे कि फॉर में होगा या अगेंस्ट में होगा, जो भी होगा आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना है, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू को, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को. तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और जो भी आप बोलेंगे आपको क्लियरली कॉन्फिडेंटली बात करनी है, ताकि ऐसा लगे कि आप वहाँ पर जितनी देर बैठे थे, भले ही आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, पर यू आर अ प्रो लिसनर. दिस इज योर गोल्डन चांस टू विन दिस ticket to interview round. Again, for this I have also given one example on my screen. Please refer to that. So now let's quickly explore the do's and don'ts of the body language that is being used in GDs. So first, telling about what you need to do is that you need to have a proper sitting posture, open posture. You need not to slouch so much and lean backward, slightly leaning forward, and showing that you are involved in the group discussion. And you need not to look only to the one member or interviewer. पैनल को देखते नहीं रहना है, आपको सारे मेंबर्स को देखते हुए बात करनी है, सबको देखते हुए बात करनी है, ताकि ऐसा ना लगे कि आप अपने में ही कहीं खोए हुए हैं या एक ही मेंबर के साथ बात कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड इज़ दैट यू नीड टू यूज़ दी हैंड गेस्चर्स अप्रोप्रिएटली. किसी को भी उंगली दिखा के या हाथ दिखा के बहुत ही एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है आपको, एंड प्रॉपर हैंड गेस्चर्स का यूज़ करना है. एंड दैट हैंड गेस्चर शुड बी बिटवीन योर शोल्डर एंड नेवल एरिया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई अनदर वीडियो, अर्लियर वीडियो, दैट इज़ इंटरव्यू बॉडी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि हैंड गेस्चर्स कैसे होने चाहिए. डिटेल में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. फोर्थ इज़ दैट यू नीड टू शो दैट यू आर लिसनिंग. मतलब सिर्फ शो ही नहीं करना है, यू नीड टू एक्चुअली लिसन. दूसरों को भी सुनना है, बस अपना पॉइंट नहीं बोलना है. और ये आप कैसे दिखाएंगे? बाय नॉडिंग योर हेड. अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आपको एक हल्का सा नॉड करना है, ठीक है. नॉडिंग शोज दैट यू आर लिसनिंग, यू आर एक्टिव इन द ग्रुप. नाउ कमिंग टू द डोंट्स ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू नीड नॉट टू लुक शो दिस एग्रेसिव पॉइंट फिंगर्स, या फिर आपको क्रॉस आर्म करके नहीं बैठना है. एंड आपको अगर टॉपिक के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता आप क्या बोलना है, बिल्डिंग पॉइंट्स भी नहीं आ रहे हैं, क्या पॉइंट ऐड करूँ ये भी नहीं पता है, तो आप फिजिट करने लग जाते हैं, पेन टैप करने लग जाते हैं, या फिर खेलना चालू कर देते हैं अपने बालों से, अपने कपड़ों से कॉलर सेट करने लग जाते हैं. तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको एक्टिवली सुनना है. एंड अगर आप एक्टिवली सुनेंगे तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो आप ज़रूर कर पाएंगे. तो आपको क्रॉस आर्म, क्रॉस लेग्स,
स्लाउचिंग, फिजिटिंग, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है. Now let us have a look on to smart phrases that sounds professional. I have listed few phrases over here for you to refer. These are the sentences which you can use when you want to add some point to your discussion in between. Because what happens, कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या बोलना है, बट ये नहीं पता होता है कि कैसे चालू करें. अगर ग्रुप में बात हो रही होती है तो हम अपना पॉइंट बीच में कैसे रखें, या फिर अगर हम इनिशिएटर हैं तो कैसे, क्या लाइन से हम स्टार्ट करें, राइट? सो दीज फ्रेजेस कैन हेल्प you with that and it will sound much more professional than starting ऐसे directly. Now comes a very important part, what to do if you are completely unaware of the topic. कई बार मतलब ये सिचुएशन तो मोस्टली बहुत सारे बच्चों के साथ फेस होती है कि हमें टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है, तो हम कैसे ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे. हाँ, क्या हम तो यहाँ पर एलिमिनेट ही हो जाएंगे अगर टॉपिक हमारे पसंद का नहीं आया, या हमने जिसके बारे में पढ़ा है वो टॉपिक नहीं आया, तो क्या करेंगे? घबराने की ज़रूरत नहीं है. आई एम गिविंग यू द प्रैक्टिकल टिप्स दैट यू कैन फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक, स्टे साइलेंट. अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं बताना है कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता. द ओनली थिंग विच यू कैन डू क्विकली स्टार्ट डूइंग इज लिसन केयरफुली. एंड सबको सुनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक कोई अच्छा स्पीकर जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत नॉलेजेबल है और बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस कर रहा है, बहुत सारी डेटा दे रहा है उस ग्रुप में, उस स्पीकर को पकड़िए और उसके पॉइंट्स को नोट करते जाइए. उसके पॉइंट्स अपने दिमाग में मेमोराइज या नोट कीजिए और उस पर अपने पॉइंट्स बिल्डअप कीजिए विथ लॉजिक. यानी आप उसी पॉइंट को एक्सपैंड करते हुए क्या बोल सकते हैं ये सोचने लगिए वहाँ पर. सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आपको अगर टॉपिक के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, और कि टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात हो रहा है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात हो रहा है, इंडियन पर्सपेक्टिव में बात हो रहा है, इफ़ यू नीड दिस क्लैरिफिकेशन यू कैन आस्क in the group by putting this question that what are we discussing this from a global point of view or in Indian perspective, ताकि आप और उसमें contribute कर सकें. और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं is that use your general knowledge, या फिर उस टॉपिक के बारे में अगर आपने कुछ न्यूज़ सुनी हो उस इवेंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं उस ग्रुप डिस्कशन में, बिकॉज कुछ ना बोलने से कुछ बोलना, दैट टू लॉजिकल इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल. सो ऑल दीज टिप्स यू कैन यूज टू कॉम्बैट योर फियर फॉर दैट. एंड अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जो अभी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं. एंड ऑल्सो मुझे ऐसे कुछ टॉपिक्स बताएं जिसमें आपको चाहिए कि मैं अपना नॉलेज शेयर करूँ या वीडियोज़ लाऊँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी रेडी कम्प्लीटली बिफोर गोइंग टू योर प्लेसमेंट राउंड. एंड नॉट ओनली प्लेसमेंट, आपको कॉलेज लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपना वीडियो पोस्ट करूँ, आई वॉन्ट यू टू कमेंट दैट टॉपिक on my comment section, and see you next time.